बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ द ओल्ड ब्राउन हॉर्स एक्सरसाइज का सोल्यूशन। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए। जब से एक्सरसाइज का सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ सारा का सारा सोल्यूशन शेयर कर लूँगी। तो अगर टाइम बचा तो मैं आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर करूँगी जो कि मुझे मेरे टीचर्स ने बताई थी और आज तक मुझे याद है। बेसिकली वो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग और इस पोएम से थोड़ी सी रिलेटेड है। जब मैं आपके साथ रीडिंग शेयर कर रही थी, इसको रीडिंग की एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही थी, टाइम नहीं था इतना कि मैं आपके साथ उसको वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर कर सकती। तो आज अगर टाइम बचा तो मैं आपके साथ वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर है जी हमारे पास एक्सरसाइज का सोल्यूशन पेज नंबर 24 के ऊपर, और पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 1 है जी आंसर दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर ए है what do we learn about the horse from his appearance and behavior। तो ये लीजिए। We learned that the horse is very old, shaggy, not very well cared for, and a bit sad. But the horse responds to human touch. What does the poet ask the reader to do? इसके अंदर है the poet asked the reader to stop by the field one day and exchange a friendly word or two with the old brown horse. See, when does the horse feel that life now is not so sad? The horse feel good when the passers-by stroke its mane and a shaggy coat. ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। Why is the horse no longer used for riding? Give at least two reasons. The horse is old, time has passed and brought new method of transport such as motor cars. ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं who might have been responsible for neglecting the horse? Why was it neglected? The master is responsible for neglecting the horse because he is busy driving his motor car. उसके बाद फिर आ जाते हैं लास्ट पर what would you have done to make the horse last year comfortable? Just like human being, animals also deserve to be treated with love and compassion. I will have taken care of the horse, touched his mane, stopped by his stable, taking him for the walk, feed him some treats. I will have made sure that horse does not feel neglected in his last year. ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेक द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। The old horse is pleased with life. False. The old horse likes having visitors. True. People who drive past are interested in the horse. False. The horse does not like being touched. False. ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेंट। ओह थैंक यू friend for the kindly thought, for a horse who has had his day. The line first means has had his day यानी कि has now grown old। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Do you think there is a rhyming pattern in the poem? What is it? Rhyming pattern यानी कि एक ही आवाज similar voices देने वाले। The odd line rhyme A B C D D E F E। ठीक है, जिसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट वर्ड एंड एक्सप्रेशन टेल अस दैट द पोएट केयर्स अबाउट द हॉर्स। उसके बाद इसकी तरफ इसका आंसर है द पोएट मेड द हॉर्स some sound pitiable and resigned to its fate through these words and expression. I am simply watching. Nobody seems to mind. A horse who is lame and half blind makes him feel quite sad, gives a little sigh, once a full of life as you, etc. ठीक है जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जी पेज नंबर 25 पे आ जाइए, और पेज नंबर 25 पे हमारे पास ये यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने बताना है, मतलब लगाना है साथ। एड सब्जेक्ट प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग मेक सेंटेंस। आपने प्रेडिकेट लगा के इसका सेंटेंस मुकम्मल करना है। वी आर गोइंग टू जू टुडे। The man who is the president is not fit for his office. An engine drives
the car, the woman with the glasses is reading a book, the dog without a tail is chasing a cat. उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अंडरलाइन विद द मेन नाउन और नाउन एंड द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग. आपने नाउन और वर्ब बताने हैं. द बॉय, जो उसके अंदर जो बॉय है वो नाउन है. वॉक्ड यानी कि ये वर्ब है, जो कि नाउन बेसिकली किसी भी शख्स का नाम होता है, ठीक है. और नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है. और वर्ब क्या होता है, जिसके ऊपर काम किया हो, कोई एक्शन को जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है. वॉक्ड यहाँ पे कोई एक्शन है, चलना एक एक्शन है, तो ये वर्ब है. अलॉन्ग बेसिकली हिज डॉग नाउन है, नाम है एक चीज़ का. फॉलोड यानी कि वो फॉलोड यानी कि एक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये काम को शो कर रहा है. फॉलोड क्लोजली बिहाइंड द लॉन्ग इलेक्ट्रिक ट्रेन नाम है, तो नाउन हो जाएगा. क्रैश्ड टू द बैक ऑफ द गुड ट्रेन, क्रैश वर्ब है. साइमन अलीना ये नाम है, तो ये नाउन हो जाएंगे. प्लेइंग इसके अंदर वर्ब हो जाएगा. नाउन वी जो है वो नाउन है और हेयर जो है वो वर्ब है. एलिफेंट नाउन है और हैज़ वर्ब है. और परवेज एंड शाहिद नाउन है और लिव वर्ब है. ठीक हो गया. उसके बाद ये हमारे पास एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर मैंने आपके साथ कर दिया है. अब मैं आपको साथ वो अपने टीचर वाली स्टोरी शेयर करती हूँ. अच्छा, सबसे पहले जिस टाइम मैंने आप लोगों को रीडिंग जिस टाइम मैं आपके साथ एक पोइम आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन सुना रही थी आपको इसकी, तो तब मैंने बताया था कि यहाँ पर बेसिकली जो हॉर्स से मुराद यहाँ पर इंसान है. जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका कोई ख्याल नहीं करता, उसकी उसकी औलाद भी उसको छोड़ के चली जाती है, ठीक है. तो इसका अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन लोगों के हुकूक माफ़ नहीं करता. इसकी मिसाल इस तरह से है. यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमारे सर बताते होते हैं, हमारे इस्लामिया पर सर बताते होते हैं कि एक शख्स था, वो अल्लाह ताला की ना हर वक्त अपने आप को हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रखता था. अभी कौन सी कौम का वाक़या है मुझे एग्जैक्ट सब कुछ याद नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ ये याद है कि किस कंस्टांस से वाक़या था. तो अब वो सब बताते हैं कि वो शख्स था ना, वो अपनी हर वक्त इबादत में मशगूल रहता है, अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहता है. नमाज़ें वक्त अदा करता है, नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, हर काम करता है जो अल्लाह ताला ने बताएगा. लेकिन ना वो लोगों का ख्याल नहीं करता था. लोग किस हालत में रह रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है तो नहीं उसकी मदद की, वो इस सब की तो परवाह रखता ही नहीं था ना. अल्लाह ताला ने एक दिन अपने फरिश्तों से कहा कि जाओ उस बस्ती को जाके उलट दो, उस सब बंदे के ऊपर पलट दो, ठीक है ना. तो फरिश्ते गए, देखा कि वो बंदा तो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था. अच्छा, फरिश्ते देखकर हैरान रह गए कि ये बंदा जो अल्लाह ताला की इबादत में हर वक्त मशगूल रहता है, जब से पैदा हुआ तो जब सबसे उसने अपना होश संभाला, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है. और लोगों अल्लाह ताला ने इसको कैसे हुक्म दे दिया हमें कि इसके ऊपर सारी बस्ती उलट दो. वो दोबारा अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह ताला से पूछा है कि यार अल्लाह ये माजरा क्या है, आपने क्या इस फ़लाँ शख्स के फ़लाँ जगह पर, वो उस बस्ती में फ़लाँ जगह पर रहने वाले फ़लाँ शख्स की जो आपके हर वक्त इबादत कर सकता है, आपने उसके बारे में हुक्म दिया है कि इसके ऊपर जाके बस्ती उलट दो. कन्फर्म कर रहे थे सिर्फ. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह के हुकूक इसको याद, लोगों के हुकूक इसको याद नहीं है, जो कि अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर देता है, लोगों के हुकूक नहीं माफ़ कर सकता. इसको सिर्फ ये पता है, इस बंदे को ये पता है कि इसने अपनी आखिरत संवारनी है. इसको ये नहीं पता कि लोगों का भी ख्याल करना है. वो लोगों को सुनता ही नहीं था, वो लोगों को मदद ही नहीं करता था, ठीक है. फिर एक और भी हम लोगों को स्टोरी सुनाई थी कि सब बताते हैं कि ना, देखिए हम जब भी रोड पे जा रहे होते हैं, हम जब भी कहीं से गुजर रहे होते हैं, ये अक्सर वो बस स्टैंड जो होते हैं जितने भी इधर से गुजर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कितने बुजुर्ग लोग होते हैं जो इतना भारी भारी वज़न उठा के लेके जा रहे होते हैं. कोई उनकी मदद नहीं करता, कोई उनके पास खड़े होकर उनको सलाम दुआ नहीं करता. और वो बेचारे, उनकी क्या मजबूरी होती है जो वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं. कुछ वो कुली बने हुए होते हैं, इतने बुजुर्ग लोग. कभी उनसे उनका स्टोरी पूछिएगा, कभी अवल तो ना पूछिएगा, क्योंकि उनकी पास में उनके साथ जो बीत रही होती है वो किसी के साथ नहीं होती. जो इंसान इतना बुजुर्ग हो जाए, उसकी औलाद जवान हो जाए, वो फिर भी इतना भारी वज़नी काम कर रहा है, ठीक है ना. तो आपको चाहिए कि लोगों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो, और जब अल्लाह ताला आपसे खुश होगा तो अल्लाह ताला आपकी हर तरह की मदद करेगा. ठीक हो गया. तो ये था आज का
लेक्चर आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।